جو بیٹی نے کلام پڑھا بڑی خوبصورتی سے، اور بات ہو رہی تھی یعقوب کی، جس یہوہ نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت بات ہے یہ کہ ہم اس کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، کیونکہ یہ مقدس کلام ہے۔ آپ جانتے ہیں جب خداوند کلام کو بولتے ہیں تو ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ واحد انسان ہے جو خاموش نہیں ہوتا ہے، یہ اس کے کلام کے اگینسٹ کھڑا ہو جاتا ہے، مخالف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کو رد کرتے ہیں تو ہم بہت بڑا گناہ کرتے ہیں۔ یہ خدا کے ورڈ ہے، پاک روح کے ورڈ ہے۔ میں اسی لیے کل بھی آپ کو کلام سنا رہا تھا کہ پولس کیا کہتا ہے کہ میں جو تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں میری طرف سے نہیں ہے، یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ آپ کو جو کلام دیا جاتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ بائبل مقدس الہامی کتاب ہے۔ اور ایک میں بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ بائبل ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بائبل ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ جس کی چھپائی ہوتی ہے، اور آج تک یہ بائبل کی چھپائی پوری بھی نہیں ہو رہی۔ آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بائبل مقدس کا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے، جس کی قبر خالی ہے، جس کی صلیب خالی ہے۔ ہاللیلویہ، زندہ تعالیٰ پاک نام کی۔ اور اسرائیل نے یوسف سے کہا مجھے تو خیال بھی نہ تھا کہ تیرا منہ دیکھوں گا، لیکن خدا نے تیری اولاد بھی مجھے دکھائی۔ یعقوب کہہ رہے یوسف کو، کب کہہ رہے میں آپ کو بتاؤں، جب یعقوب مصر میں گیا، جب پوری دنیا میں کنعان میں کال پڑا، ہر ایک چیز کا، کھانے کا کال، پینے کا کال، یہاں تک کہ پانی مجسم نہیں تھا، یہاں تک چھپڑیوں میں پانی نہیں تھا، اور بوٹیوں پر جو لوگ کھاتے تھے پہلے جنگل میں آلو یہ وہ اور چیزیں جن کو بولتے تھے پھلیاں جنگل کی، وہ نہیں مل رہی تھی۔ اتنا سخت اور بڑا کال تھا، اور کیا ہوا کہ مصر میں بہت اناج تھا، اتنا اناج تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج کے دور میں اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جو یوسف نے جمع کیا تھا اپنی عقل سے، اپنی دوائی سے، اس فرعون کے گھر میں، تو وہ اناج لینے کے لیے یعقوب بھی وہاں گیا اپنے بیٹے کے پاس، اسی لیے وہ وہاں تھا، اور اسی لیے اس نے اس کا منہ دیکھا۔ اور جب بائبل فرماتی ہے کہ جب یعقوب وہاں گیا تھا وہ 130 سال کا تھا۔ کتنے سال کا تھا؟ 130 سال کا تھا جب وہ مصر میں گیا۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہ یعقوب کے پاس اتنی برکت تھی، آپ بائبل میں ذرا غور سے ریڈ کریں، اتنی برکت تھی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی برکت دی اور یوسف کے بیٹوں کو بھی بنایا ہے۔ کہتا ہے کہ اللہ یہ کون ہے، حالانکہ یہ نہیں کہ یہ جانتا نہیں تھا، یعقوب جانتا تھا، لیکن بائبل فرماتی ہے کہ اس کی آنکھیں دھندلی ہو گئی تھی، وہ غور سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کیوں پوچھا؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، اس نے کیوں پوچھا؟ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیٹے ہیں، پھر بھی وہ تسلی کرنا چاہتا تھا۔ کیوں اس نے تسلی کی؟ کیونکہ اسحاق کی جب آنکھیں دھندلی ہو گئی تھی تو یعقوب دھوکے سے برکت لے کر آیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں نہیں جانتے؟ تو اسی لیے اب وہ بڑے غور سے پوچھ رہا ہے کیا یہ کون ہے، اور یوسف کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ یوسف کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ کہتا اچھا تو لا ان کو میرے پاس لا، اور اس نے جس خوبصورتی سے ان کو برکت دی ہے، جب آپ بائبل کو اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے، سمجھیں گے، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ برکت اس نے افرایم کو زیادہ کی تھی اور منسی کو کم کیوں دی، کیونکہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جب پہلے یہودیوں
जो बच्चे होते थे वो उनको डबल हिस्सा देते थे। आपने अन्ना के बारे में पढ़ा कि उसका शोहर क्योंकि उसकी बड़ी वाइफ थी उसको डबल हिस्सा देता था। और रोबन को क्या कह रहा है जब बरकत दे रहा है कि तुमने मेरे बिछौने को खराब किया। मेरे जीजों, बाइबल को जब अच्छी तरह से पढ़ेंगे तब आपको इसकी समझ आएगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे, हो सकता है आप कैसे समझ आ जाए। शायद आ जाए, आप इधर आ जाए, दो बच्चे आ जाए, आप भी आ जाए सारे, और भाई शाबाश भी आ जाए, आ जाए सामने, आपको मारना नहीं है, आ जाए शाबाश, खड़े हो जाए। और भाई वजीर आप भी आ जाए, जोरदार तालियां इनके लिए। मेरा ख्याल कि आपको सबका समझ आए, लेकिन ऐसे आपको समझ आ जाएगी। हालेलुया। ये है याकूब जिसकी आंखें बिल्कुल धुंधली थी, जो गौर से देख नहीं सकता था, और ये अब ऐसे खड़ा है। और ये कौन है? ये है यूसुफ, और ये है इसके बेटे। अब याकूब कह रहा है यूसुफ को कि अपने बेटों को मेरे पास लेकर आ, मैं उनको बरकत दूं। अब इसने क्या किया? अब इसके बीच हो जाए, ऐसे कर लिया, ऐसे कोई बात आप नहीं, ऐसे इनके दोनों बाजू पकड़ लिया, और ये अपने बाप के पास जा रहा है, यानी अब्राहम के पोते के पास जा रहा है, याकूब के पास। आप उधर हो जाए, चले जाए। और ये बरकत कैसे दे रहा है? ये इसका दाई साइड है और ये इसकी बाई साइड है, और याकूब की ये दाई साइड है और वो बाई साइड है। ऐसी खड़े हो जाए, कोई बात नहीं। और ये हाथ ऐसे रख रहा है, दाया हाथ उस पर रखा, उधर रखे आप उधर, और ये रख दे, और ये बाया हाथ इधर रख रहा है। जब ऐसे उसने बरकत दी तो यूसुफ कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज होकर ना खुश हुआ, उसे गुस्सा आ गया। कहता हूँ पापा और डैड ठहर जा, ये मनसी है, ये बड़ा है, और ये इब्राहिम है, ये छोटा है। और याकूब क्या बोलता? कहता मैं जानता हूं कि ये मनसी है और वो अफराइम है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि इसमें से बड़ी कौमें होंगी, बड़े लोग होंगे, और इसमें में से बहुत गिरोह होंगे। हालेलुया। अब आपको बात समझ में आई है कि जो यूसुफ है वो मनसी को बरकत दिलाना चाहता है कि ये मनसी बरकत ले, बड़ी बरकत, लेकिन जो याकूब है वो इब्राहिम को बरकत देना चाहता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। जब इसहाक के पास यीशु और याकूब दोनों गए तो बरकत कौन पहले रह गया था? याकूब रह गया था। जोरदार तालियां। आपको समझ आ रही? ये एक बरकत जो दे रहा है उसे पता है कि मैंने बरकत किसको दे दी है। फिर भी बैठ जाए, अब बैठ जाए अभी। अब ये बरकत मिल गई है इब्राहिम को जो छोटा था, लेकिन बाइबल फरमाती है कि जब ये इसराइल में बच्चे होते थे तो बड़ों को बरकत दी जाती थी, ना कि छोटों को बरकत दी जाती थी। लेकिन जब उन्हें बरकत ली तो जब मैं आगे बेटी रुखसार को गिनती की किताब पढ़ा रहा था और मैंने जब मनस्सी और इब्राहिम की नस्ल के बारे में पढ़ा तो मुझे फौरन वो हवाला याद आया जो याकूब ने यूसुफ से कहा कि ला अपने दोनों बेटों को, मैं उनको बरकत देता हूं। हालेलुया। कैसे? हम गिनती की किताब निकालेंगे, गिनती की किताब उसका पहला बाब और उसकी 32 है। सुने जरा गौर से। और यूसुफ की औलाद यानी इब्राहिम की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का हो, जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो इब्राहिम के कबीले के जो आदमी शुमार किए गए वो 40,500 थे। इब्राहिम के कबीले के कितने लोग थे? 40,500।
मनस्सी के कबीले की तरफ। और मनस्सी की नस्ल के लोगों में से एक एक मर्द जो 20 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का हो और जंग करने के काबिल था, वो अपने घराने और आबाई खानदान के मुताबिक गिना गया। सो मनस्सी के कबीला के जो लोग, जो आदमी शुमार किए गए, वो 30,200 थे। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो बड़ा होता है उसका नाम पहले आता है, जो छोटा होता है उसका नाम बाद में आता है। लेकिन जब यकूब ने नामजद किया दोनों को, तो इफ्राइम को पहले नामजद कर दिया, उस पर अपना दाहिना हाथ टिका दिया। और यहाँ लिखा है कि पहले जब गिनती हुई इस्राएलियों की, तो सबसे पहले नाम किसका आया? इफ्राइम का। हालेलुया। और इफ्राइम 300 साल के बाद ये गिनती हुई, और बाइबल फरमाती है कि एक पूरी पीढ़ी, एक पूरी जनरेशन, वो इफ्राइम जो था वो मनस्सी से आगे निकल गया। हालेलुया। ये होता है बरकत का सबब, ये होता है बरकत का वसीला कि आप बंदों में भी आगे जाएंगे, दौलत में भी आगे जाएंगे, और जितनी चीजें उनमें भी आगे जाएंगे, जब आपको दाहिने हाथ की बरकत मिलती है। इसीलिए यीशु मसीह ने फरमाया कि तू अपना दाहिना हाथ उठा और लोगों के लिए दुआ कर। जब हम लोगों के लिए दाहिने हाथ से दुआ करते हैं, तो दाहिने हाथ में खुदा ने अथॉरिटी ठहराई है, आपको अथॉरिटी दी है। जब आपके खुदा के बंदे हैं, आप खुदा के मंसूब हैं, और आप दाएं हाथ से आप लोगों को बरकत दे रहे हैं, तो मेरा ईमान है कि वो बरकत आपको जरूर मिलेगी। हालेलुया। ऐसा नहीं कि खुदा ने कहा कि दाहिने हाथ में पावर नहीं है, ताकत नहीं है, जोर नहीं है, दोनों में जोर है। लेकिन खुदा अथॉरिटी देकर हमको ये समझाता है, सिखाता है कि कुछ चीजों में उसने अथॉरिटी रखी हुई है। मेरे अजीजों, हमें कलाम समझने की जरूरत है, हमें कलाम सीखने की जरूरत है कि कलाम हमें बता के रहा है, सिखा के रहा है। जब हम बाइबल को अच्छे तरीके से रीड करते हैं, पढ़ते हैं, हमें बाइबल की समझ आती है। एक दिन में हमें समझ नहीं आती है। जब बच्चा स्कूल जाता है तो एक दिन में थोड़ा पास हो जाता है, या वो जंप लेकर 10वीं क्लास में चला जाता है। नहीं, उसको 10 साल मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो फेल ना हो, तो अगर वो फेल हो जाए तो फिर पीछा आ जाएगा, वो बाइक हो जाएगा। जब वो फेल नहीं होगा, अच्छे नंबरों से पास होता जाएगा, तो रेगुलर आगे चला जाएगा। मेरे जो बाइबल भी ऐसे ही है, जब हम इसको पढ़ते हैं, हमें यहोवा की समझ आती है, हमें उस खुदा की समझ आती है, और फिर बरकतें आना शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आज का मुकद्दस कलाम आया। हालेलुया। जोरदार। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आपके साथ होगा, खुदावंद आपको बरकत है। इस कलाम के और परियासत के साथ मिलकर दुआ करेंगे।